Good morning, students. Here we are on ninth lecture of organic chemistry part, basic concept and technique. This chapter is the name of this chapter, organic chemistry basic concept and technique, and in this part we are going to discuss about isomerism. Right? What is, simply I can say, isomerism is sometimes a compound show sometimes there are different structures for a molecular formula. ठीक है, some compounds have same molecular formula same होगा, okay, but they have even I can say there is the isomerism. What are isomerisms? The phenomena showing different compounds having same molecular formula, and these different compounds are different chemical and physical properties also, right? So those compounds which have same molecular formula but different chemical and physical properties are termed as isomers, and the phenomena of showing different compounds for a molecular formula is called isomerism. There is two types of isomerism. One is called structural isomerism and another one is called stereoisomerism. Structural isomerism means there is a difference in structure. Different bonds are there, different structure is there. But in stereoisomerism there is 3D orientation is different. Bonds are same, but the orientation of atoms is different in 3D. So that is stereoisomerism. We have very limited syllabus in class 11th about it, right? And some part is given in hydrocarbon also, and so at different place the information is given. But collectively, name of the type of isomerism I gave here. We will discuss here only some isomerism, and जब different compounds के बारे में बात आएगी तो वहाँ पर हम उनके बारे में भी बात करेंगे. यहाँ पर हम कुछ ही isomerism के बारे में बात कर रहे हैं. Okay, so we are going to discuss important 4 type of structural isomerism only here, that is chain, position, functional and metamerism. The first structural isomerism is chain isomerism. Before I proceed for various isomerisms, let us mention one important thing, that is some important points for isomers are very fixed. Like isomers have a same molecular formula. Isomers must have same must have same that vapor density. We know vapor density molecular formula same है तो molar mass same होगा, vapor density same होगी. Isomers should have different IUPAC name. Isomers का IUPAC name एक जैसा नहीं होना चाहिए. Isomers should have unsaturation index or double bond equivalence or hydrogen deficiency index. It means I mean to say कि उसमें जो डबल बॉन्ड है उससे, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड सेम होना चाहिए, ठीक है. रिंग है तो रिंग के नंबर सेम होना चाहिए, है ना. अनसैचुरेशन इंडेक्स के बारे में आपसे कभी अलग बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं उसमें ज़्यादा रोल नहीं है. ओके, so first I am going to discuss about the chain isomerism. So some points like same molecular, last 4 points are same in all type of isomerism, right? First point is different, that is specifically for chain isomerism, that is different chain length. चेन की लेंथ जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए. जो पेरेंट कार्बन चेन है वो डिफरेंट होगी. एंड द सेकेंड इज डिफरेंट रूट वर्ड. इसका सीधा सा मतलब है कि अगर चेन लेंथ वाले 7 कार्बन की चेन होगी तो उसका IUPAC नेम में रूट वर्ड क्या होगा, हेप्टेन. लेकिन अगर चेन 5 कार्बन की होगी तो उसका रूट वर्ड क्या होगा, पेंटेन. सो ऑब्वियसली चेन लेंथ डिफरेंट होगी और रूट वर्ड भी डिफरेंट होगा.
मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। जैसे पहला बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, जहाँ से आइसोमेरिज्म हो सकता है या चेन आइसोमेरिज्म जहाँ से देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। आप तरीका देखिएगा मैं कैसे आइसोमर्स बनाता हूँ, बिकॉज किसी का भी चेन आइसोमर कितने होंगे, आइसोमर कितने होंगे, ये बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। सो यू कैन सी एन ब्यूटेन इज देयर, नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन जो होता है एन ब्यूटेन लिखते हैं। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, एक CH3 उठा के यहाँ डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा CH3, एंड पर जब भी कार्बन होंगे दैट दे वुड बी CH3 एंड CH3। तो अभी क्या होगा इसका 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC में देखें तो इसे कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या कहेंगे इसे, 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये देखिए ये जो L उल्टा L बनता है जब कभी एंड पर इस तरीके से, और एक कार्बन बस हो सकता है, बहुत ज्यादा कार्बन हो तो फिर उसे कंसीडर नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में इधर से भी L और इधर से भी L, इसे कहते हैं आइसो ग्रुप। और फिर उसमें आइसो जो है ये कॉमन नेमिंग का तरीका है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से लिख देते हैं, तो आइसोब्यूटेन इसे कहते हैं, आइसोब्यूटेन। तो ये दो आइसोमर ही हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर ब्यूटेन के, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। इसी तरह से अगर मैं पेंटेन के लिए आइसोमर बनाता हूं CH3 CH2 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 CH3, तो ये कहलाता है नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन मींस नॉर्मल पेंटेन। अगर एक ब्रांचिंग में यहां ऐड कर दूं, सो दैट वुड बी CH3 CH3 CH2 CH3। in that condition this would be isopentane, इसे हम कह देंगे क्या, आइसोपेंटेन, ठीक है। या IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो हम कहेंगे क्या 2 मिथाइल, इसीलिए IUPAC नेम की बात करते हैं ब्यूटेन। देखिए रूट वर्ड बदल गया ना। एंड अगर हम इसे एक बार और लिखें CH3 CH, अब देखिए एक और तरीका, अगर आप CH3 को यहां ले जाएंगे तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी, तो यही कंडीशन हो जाएगी, तो कुछ भी अलग नहीं है। एक ब्रांचिंग और डाल दीजिए तो बन जाएगा CH3 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 इस तरीके से। तो इससे हम नाम क्या दे सकते हैं 1 2 3, सो इट वुड बी 2 डाइमिथाइल एंड प्रोपेन। रूट वर्ड देखिए कैसे चेंज हो रहा है। तो जब रूट वर्ड चेंज होता है तो उस कंडीशन में हम इसे कह देते हैं चेन आइसोमेरिज्म होगा, जब भी रूट वर्ड हमें चेंज देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? तो तीनों ही चेन आइसोमर्स हैं नियो। अब देखिए इसे नियो फॉर्म कहते हैं जब कभी भी टी मिलता है। मैंने आपसे कहा था ना एंड पर टी, देखिए ये एक टी जैसा लग रहा है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए टी जैसा बन रहा है, तो ये जो टी बन रहा है आई थिंक विजिबिलिटी बेहतर होगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से बना देता हूं। तो ये जो टी बन रहा है ये नियो के लिए होता है, जैसे लगता है नियो और फिर 5 कार्बन है तो इसे हम कह देते हैं नियोपेंटेन। तो ये कॉमन नेमिंग होती है, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, राइट। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं चेन आइसोमर्स के। आप देख सकते हैं कि ब्यूटेन में 2 और पेंटेन में 3 आइसोमर्स हमें देखने को मिलते हैं और सबके सब चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर अबाउट चेन आइसोमेरिज्म विद यू। सेकंड आइसोमेरिज्म दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन दैट केस लास्ट 3 4 5 6 आर सेम, वहां कोई डिफरेंस नहीं होता है। फर्स्ट एंड सेकंड इज डिफरेंट, वन इज डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, इज देयर एनी हेटेरोएटम्स और लोकेंट्स जो हम इंटीजर लिखते हैं वो डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली पोजीशन डिफरेंट होगी तो लोकेंट्स भी डिफरेंट होंगे। चेन सेम होगी, है ना। मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड करता हूं, चेन लेंथ। देखिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, जो नहीं दिया है उसको कंसीडर नहीं करना है, वो सेम ही मानना है ना। जो बाकी चीजें जो है जो डिफरेंट दिया हुआ है बस उसी पर फोकस करना है। तो डिफरेंट पोजीशन होगी, चेन लेंथ ऑब्वियसली सेम हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेंगे कि चेन लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है तो चेन लेंथ सेम होगी, राइट। ओके, सो चेन लेंथ डिफरेंट होगी और लोकेंट्स ऑब्वियसली चेन लेंथ सेम होगी, पोजीशन डिफरेंट होगी, लोकेंट्स डिफरेंट होंगे, ये हमें ध्यान देना है।
ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन एग्जाम्पल से इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम क्या शेयर करना चाहते थे इस बारे में। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे हेक्सेन लेते हैं, हेक्सेन पहले लेते हैं फिर और एग्जाम्पल्स भी देख ले सकते हैं। तो हेक्सेन को देखें तो CH3 CH2 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 CH3, इट इज नॉर्मल हेक्सेन, लेकिन ये एन हेक्सेन हो गया हमारा, राइट। अब दूसरा क्या हो सकता है, एक CH3 हम साइड में जोड़ दें, तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, तो इससे आइसोहेक्सेन आप कहेंगे, लेकिन जनरली आइसोहेक्सेन इतना पॉपुलर नहीं है, है ना, क्योंकि ये 3 कार्बन के कारण से एक और आइसो बन सकता है, तो जब 2 आइसो होता है तब होता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, इसका उतना आइसो पॉपुलर नहीं होता। जनरल IUPAC नेम लिख दीजिए 1 2 3 4 5, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 मिथाइल, एक हो जाएगा 2 मिथाइल और पेंटेन। तो देखिए ये तो आपका रूट वर्ड चेंज हो गया, तो ये दोनों तो चेन हो गए। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं CH2 और यहाँ CH और यहाँ CH3 और CH2 CH3, नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5, so it will be 3 methyl pentane, can you see। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका ये दोनों यानी 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन जो है वो पोजीशन आइसोमर है। बाकी ये और ये जो है वो चेन आइसोमर है। फर्स्ट और थर्ड भी जो है वो कैसे हैं, चेन आइसोमर है। समझ में आ रहा है, क्योंकि रूट वर्ड डिफरेंट है। अच्छा, कभी ऐसा लगे कि पोजीशन और चेन दोनों समझ में आ रहे हैं तो चेन वुड बी प्रेफर्ड। ठीक है, ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चेन वुड बी प्रेफर्ड ओवर, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, नोट के फॉर्म में मेंशन कर देता हूँ, चेन वुड बी प्रेफर्ड ओवर पोजीशन, चेन प्रेफर्ड ओवर पोजीशन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चेन जो है वो पोजीशन से ज्यादा प्रेफर्ड होता है। बाकी जो है तो कौन सा प्रेफर, अगर आपको दोनों लग रहे हैं तो है ना, तो चेन देख लीजिएगा, चेन है तो वो पोजीशन से ज्यादा प्रेफर्ड किया जाएगा, है ना। तो इन दिस केस आप देखें पोजीशन अलग है इन दोनों में, लेकिन अपन उसे कहते हैं चेन, क्योंकि रूट वर्ड डिफरेंट है, राइट। फिर अगर हम इसमें और देखें, और भी तो बन सकते हैं, जैसे अभी अगर इसको इधर ले जाएं तो बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, हाँ या ना। अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ठीक है, तो चलिए वो वही नहीं होगा। एक और CH3 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3 CH, एक CH3 यहाँ लगा देते हैं, दूसरा CH3 यहाँ लगा देते हैं और फिर CH3 यहाँ हो जाएगा। सो 6 कार्बन हो गए ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए ये फिर से चेन आइसोमर हो गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये फिर से चेन आइसोमर हो गया। तो ओके, तो पोजीशन क्या होगा, अब इस CH3 को उठाकर यहाँ डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और C, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे एंड CH3। तो अभी क्या हो गया ये, तो इट वुड बी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देख रहे हैं मैं कैसे बना रहा हूँ, इसी तरीके से हर बार आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एक और नाम आ गया। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो कैसे हो गए बेटा, ये जो है 2,3 डाइमिथाइल 2, ये चेन आइसोमर हो गए। समझ में, तो इस तरीके से चेन और पोजीशन कई बार एक जैसे होते हैं। और हेक्सेन के लिए हम ऐसे 5 आइसोमर लिख सकते हैं, जिनमें से कुछ चेन होते हैं और कुछ जो है वो कैसे होते हैं, कुछ चेन होते हैं और कुछ कैसे होते हैं बेटा, जो है वो कुछ पोजीशन होते हैं। चलिए अब पोजीशन के और बहुत सिंपल एग्जांपल से शेयर करता हूँ। लाइक एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C3H7Cl। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, एक हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl1, फिर दूसरा क्या हो सकता है CH और यहाँ एक Cl लगा दें, तो ये दोनों कैसे आइसोमर हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। देखिए Cl की पोजीशन अलग अलग हो गई ना, दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज कॉल्ड 2 क्लोरोप्रोपेन, यस और नो। तो हर तरीके के फंक्शनल ग्रुप में, हर तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स में ये यूज किए जा सकते हैं और आपको ऐसे आइसोमर्स मिल सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूँ। लाइक CH3 CH2 CH, एक देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं। लाइक
H10OH। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा CH2OH। तो ये कौन सा, ये एक हो गया। इससे हम नाम दे सकते हैं 1 2 3 4, तो हम कहेंगे ब्यूटेनॉल। क्या कहेंगे इसे, ब्यूटेनॉल। फिर अगर हम OH को यहाँ लिख दें CH3 CH2 CH और OH और यहाँ पर CH3, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। पहले में ब्यूटेनॉल 1 था, लेकिन 1 ब्यूटेनॉल लिखते, ब्यूटेन 1 ऑल नहीं भी लिखें तो चलता है ना। तो 2 ब्यूटेनॉल। तो ये दोनों कैसे हो गए, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर इसमें हो सकते हैं जैसे CH3 CH3 और यहाँ CH2 और OH ले लीजिए, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। देखिए रूट वर्ड बदल गया कि नहीं बदल गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये कैसा हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आप ऐसा लिख दें CH की जगह यहाँ पर OH लिख दें और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो ये कैसा हो जाएगा, अगेन इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये कैसा हो जाएगा, ये दोनों जो है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से पोजीशन आइसोमर, पोजीशन डिफरेंट होती है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे नाम, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और इसे क्या लिखेंगे आप 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आ रहा है, तो दोनों की पोजीशन कैसी हो गई, दोनों की पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो ये कैसे हो गए, पोजीशन आइसोमर। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और फाइनली देखते हैं, लाइक हम ले लेते हैं C3H6Cl2 बराबर। लास्ट एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, C3H6Cl2। तो क्या बना सकते हैं हम, एक तो ऐसा बना सकते हैं CH3 CH2 CH और Cl2, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन। ऐसे कंपाउंड को जैम डाइक्लोराइड कहते हैं, जैम डाइक्लोराइड है ना। बाकी IUPAC नेम में कुछ नहीं, कई बार जैम मतलब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन एक ही कार्बन, तो जैम डाइक्लोराइड कहते हैं। और इसे नाम क्या देंगे, 1 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब इसे अलग कर सकते हैं भाई, एक Cl को इधर ले आइए, दूसरा Cl क्या हो जाएगा CH2Cl, तो इसे कहेंगे 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों कैसे हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। फिर एक बार और हो सकता है, Cl को इधर ले लीजिए, CH2 इधर ले लीजिए और CH2 एक Cl इधर, तो इसे क्या कहेंगे 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। एक और बन गया, एक और बन सकता है, इसमें क्या बन सकता है, एक और CH3 CH, यहाँ एक Cl और यहाँ एक Cl और CH3, तो 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये चारों के चारों आइसोमर जो हैं वो पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि चेन में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो पोजीशन में हो रहा है क्लोरीन की, है ना। जहां आजू बाजू कार्बन पर क्लोरीन होता है उसे जो है वो आप उन्हें आप क्या कहते हैं, विस डाइक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विस डाइक्लोराइड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के चेन आइसोमर्स बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ओके, सो दिस इज अबाउट चेन आइसोमर्स। नाउ वी आर ऑन द फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में अगर हम बात करें तो अगेन द पॉइंट्स 2 3 4 5 इज डिफरेंट। अब 2 3 5 4 5 इज सेम, लास्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं वो सब में सेम है, ठीक है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर कभी ऐसी कंडीशन हो कि आपको चेन या पोजीशन भी दिख रहे हैं तो फंक्शनल वुड बी प्रेफर्ड। F stands for functional, then chain, C stands for chain and P stands for position, यानी पोजीशन लीस्ट प्रेफर्ड होता है। यानी सबसे पहले आप देखेंगे अगर फंक्शनल दो ग्रुप के साथ साथ आपको कुछ और दिख रहा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही होगा। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको शेयर कर रहा हूं, वैसे मैं कुछ कंपाउंड यहां लिख सकता हूं जिनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। मैं उन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूं और यहां मैं लिख भी सकता हूं जिनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। लेट मी शो यू। मैं कुछ नाम जरूर आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जिनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या होना चाहिए कि या इधर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो या फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो।
अब जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नंबर 1 इज, जो पहला हो सकता है वो होता है एल्कोहल्स एंड ईथर। अगर एल्कोहल और ईथर के बारे में आपसे बात करूं तो एल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। दूसरा मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं। एलिफेटिक एल्कोहल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स। ठीक है, इसी तरीके से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, आप उनका कोई भी देखें, उनके फॉर्मूले आपको सेम मिलेंगे जिनके लिए मैं लिख रहा हूं। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, राइट। ये जो है बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। कुछ और हो सकते हैं जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, है ना, और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन एग्जांपल हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि क्या डिफरेंट होता है, उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी कंडीशंस सेम होती है। यानी आइसोमर्स की जो कंडीशन है, यानी फॉर्मूला सेम होना, अनसैचुरेशन इंडेक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जो है, यानी पाई बॉन्ड कितने हैं, रिंग कितना है, वो सेम होना, वेपर डेंसिटी सेम होना, डिफरेंट IUPAC नेम जो है वो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये चारों कंडीशंस फॉलो होती हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं एल्कोहल और ईथर के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ, 1 बाय 1 में आपसे डिस्कशन करता हूँ। एल्कोहल ईथर की बात करें तो एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल इज एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं, C3H6O। अब C3H6O में हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉल, और इसका एक पोजीशन आइसोमर भी बन सकता है, CH3CH और यहाँ OH और यहाँ CH3, दिस वुड बी 2 प्रोपेनॉल। एक हो गया आपका प्रोपेनॉल और दूसरा हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल। लेकिन अगर मैं इसी ऑक्सीजन को ऐसा लिख दूं, CH3 CH2 OCH3, तो इसका मैंने IUPAC नेम लिखने का तरीका बताया था, इसके साथ मेथऑक्सी, तो हम इसे लिखते हैं मेथॉक्सी, और बाकी मेन कार्बन चेन 1 2, तो ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन, इसे हम इसे कह सकते हैं, या ये कोई भी कंडीशन होगी मेथॉक्सी ईथेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपका एल्कोहल है, ये आपका ईथर है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डबल बॉन्ड अगर होते तो सेम होते, तो सारी कंडीशंस जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, सेम हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि हमारे पास मान लीजिए एल्कोहल में ही हमारे पास एक बेंजीन रिंग भी है, ये एक कंपाउंड है, जैसे हमने कहा कि C6 और C7H8OH, C7H9O, इसके बहुत स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, बट मैंने कहा कि बेंजीन होगा ही होगा, तो बेंजीन का हो गया C6H5, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, C6H8O सही होगा, मैं C7H8O विल बी करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब C7H8O को अपन कैसे लिख सकते हैं, CH2OH लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग के साथ, तो देखिए बेंजीन रिंग में हो जाता है आपके कितने C6H6 होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन उसकी जगह से हट गया तो C6H5 बचा, और CH2 और OH तो C7H8OH हो गया। तो ये एलिफेटिक अल्कोहल होगा, जब रिंग से OH जुड़ा होता है तब ही वो फिनॉल कहलाता है, अदरवाइज वो फिनॉल नहीं कहलाता है, यानी एरोमेटिक अल्कोहल वो नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, उस कंडीशन में हम उसे क्या कह सकते हैं, फिनॉल। अब ये एलिफेटिक अल्कोहल होगा, यानी ये फिनॉल नहीं होता है, और जब OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तब हम इसे कह सकते हैं क्या, फिनॉल। और CH3 इस तरह से ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है। तो ये दोनों जो हैं
दोनों के नेचर डिफरेंट है, तो दोनों फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। ये ईथर भी बना सकता है, ईथर के साथ भी फंक्शनल आइसोमेरिज हो सकता है। लाइक इसकी बात अगर अपन करें तो ये स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है OCH3, तो ये कैसा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर, ये भी कैसा हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। ये सब एक दूसरे के कैसे हैं फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है ना। तो फंक्शनल आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तब हम उसे कह देते हैं फंक्शनल। और फंक्शनल ग्रुप का नेचर भी कई बार डिफरेंट होता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लाइक दिस, ठीक है। एक और खास बात देखिए, इसमें 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना ही चाहिए। यहाँ CH3 भी आ सकता है, तो दूसरा बन गया, IUPAC नेम डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ एक CH3 नीचे भी आ सकता है, तो तीसरा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सो दिस वुड बी थर्ड वन ऑल्सो। सो ये तीनों ऑल 3 आर पोजीशन आइसोमर्स। और इस कंपाउंड के अगर बेंजीन रिंग के साथ देखा जाए तो इस तरह से 5 कंपाउंड बन सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, और ऑल आर आइसोमर्स। कुछ चेन है, कुछ पोजीशन है, जो चेन तो एक भी नहीं है, कुछ पोजीशन है और कुछ फंक्शनल आइसोमर्स है। बात समझ में आ रही। कॉम्बिनेशन कई बन सकते हैं, है ना, जैसे इसके ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल, ये भी 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 फंक्शनल, एक दूसरे के ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे पोजीशन। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इतने स्ट्रक्चर ही आप ड्रॉ कर सकते हैं C7H8O के लिए, राइट। ऐसे ही कुछ और कंपाउंड मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन, लाइक C3H6O, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CHO, दिस विल बी प्रोपेनल, दिस वुड बी प्रोपेनल। एंड अगर हम इसे ऐसे लिखें CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो दिस वुड बी प्रोपेनोन। तो एक एल्डिहाइड हो गया और दूसरा क्या हो गया कीटोन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन उसके जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने के कारण दोनों आइसोमर कहलाएंगे और दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड कंसीडर किए जाएंगे, डिफरेंट कंपाउंड कंसीडर किए जाएंगे। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। आई थिंक बहुत क्लियर हो गया इससे रिलेटेड। एक और एग्जांपल चलिए देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के बारे में ईस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक CH3CH2CH2COOH, मैं पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहिए, तो मैंने लिख दिया जैसे C4H8O2, राइट। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे CH3CH2CH2COOH, ठीक है। एक तो ये हो गया, बाकी इसमें आप अगर CH3 इधर डाल दें तो चेन आइसोमर भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ओके, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरा क्या हो सकता है CH3CH2COOCH3। तो इस कंडीशन में कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ईस्टर की नेमिंग कर रहे हैं, आपने काफी अच्छे लेवल तक नेमिंग की हुई है तो आपको आसान हो जाएगा ये। तो इसे लिखेंगे मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, क्या कहेंगे इसे मिथाइल प्रोपेनोएट। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, है ना। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो कंडीशन अलग बन सकती है। इसमें एक और सिचुएशन बन सकती है, जैसे CH3COOC2H5, तो इसे क्या कहेंगे इथाइल प्रोपेनोएट, कहेंगे कि नहीं कहेंगे इथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो ये भी इसके साथ फंक्शनल आइसोमर होगा, लेकिन इन दोनों में तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, तब ये कौन से आइसोमर होंगे। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म में जहां पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप का नेचर, या इधर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो या उनका नेचर डिफरेंट हो, तो उन्हें मेटामेरिज्म कहते हैं, जो अगले टाइप का आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अब देखो नेचर कैसे डिफरेंट हो गया। इस कंडीशन में इथाइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कंडीशन में ये किस ऑक्सीजन, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन इसमें डिफरेंट हो गया, तो ये मेटामेरिज्म का एग्जांपल भी बनता है।
ठीक है। फंक्शनल आइसोमर्स के एक एग्जांपल अमाइंस बचा हुआ है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला, एक कंपाउंड बनता है लाइक C3H9N, C3H9N। तो मैं इसे कैसे लिखता हूं, CH3CH2CH2NH2। इसे कहेंगे क्या, प्रोपाइल अमाइन या प्रोपेन अमाइन, 3 कार्बन का। ये प्राइमरी अमाइन है, प्रोपेन अमाइन भी हम इसे कह सकते हैं। दूसरा कैसे हो सकता है, CH3CH2NH और CH3, दिस इज कॉल्ड एन मिथाइल ईथेन अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है। और ऐसे ही N और उसके साथ 3 CH3 ग्रुप अगर हम ऐड कर देंगे, सो दैट वुड बी टर्सरी अमाइन। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 तरह के अमाइंस बन सकते हैं, और ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरह कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इस तरह से शायद अब आपको इतने एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आएगा कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और जैसा मैंने एक एग्जाम्पल आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही शेयर किया था, दैट इज मेटामेरिज्म। सबसे पहले तो मेटामेरिज्म में अगले 3, 4, 5, 6 से लास्ट के 4 पॉइंट जो है वो सेम ही होंगे। पहला पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, दैट इज ऑब्जर्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। यानी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हमें कब देखने को मिलते हैं, कौन से कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप नॉन टर्मिनल होते हैं। अगर हमें एक लिस्ट बनानी है नॉन टर्मिनल ग्रुप्स के, तो नॉन टर्मिनल ग्रुप्स मतलब जो कभी भी एंड पर नहीं मिलते, हमेशा बीच में देखने को मिलते हैं। कहां पर बीच में, जो कार्बन चेन होती है उसके बीच में ये देखने को मिलते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो सबसे सिंपलेस्ट जो है वो होता है ईथर। ईथर एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, देखिए दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। इसके अलावा फिर आता है कीटोन। कीटोन के बाद क्या हो सकता है, ईस्टर। ईस्टर एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आपको एनहाइड्राइड भी मिल सकता है, एनहाइड्राइड भी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद जो है एनहाइड्राइड के बाद क्या मिल सकता है, एक और नाम, हाँ, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस है ना, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस है ना, उनमें भी, क्योंकि वो भी एंड एल्काइल ग्रुप उनमें दोनों तरफ होते हैं। तो इन सब कंपाउंड्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इन सारे कंपाउंड्स में हमें क्या मिल सकता है, हमें मेटामेरिज्म मिल सकता है। अब मेटामेरिज्म का मतलब बहुत क्लियर है कि जो डिफरेंट, जो एल्काइल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका नेचर डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात। अगर आपको कोई कंडीशन ऐसी मिलती है कि चेन, पोजीशन और आपको मेटामेरिज्म भी लगता है, तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड जो होता है वो फंक्शनल होता है। अभी तक चल रहा था कि फंक्शनल प्रेफर्ड होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर मेटामेरिज्म भी आपको लग रहा है और फंक्शनल भी लग रहा है तो फंक्शनल सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा। उसके बाद मेटामेरिज्म की प्रेफरेंस होती है, उसके बाद चेन होता है, और लास्ट में जो प्रेफरेंस होती है वो पोजीशन की हमें देखने को मिलती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, FMCP, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स मेटामेरिज्म के आपसे शेयर करता हूं। जैसे मैंने ईथर की बात की, तो ईथर में क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH2, या मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H10O। अब ये फंक्शनल देता है, मैं तो आपको पता है, लेकिन हम केवल यहाँ पर मेटामेरिज्म देख रहे हैं, इसलिए हम वही एग्जाम्पल लिखेंगे, CH3CH2CH2 और यहाँ पर OCH3। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी प्रोपेन। और अगर दूसरा कंपाउंड मैं बना दूं CH3CH2OCH2CH3, तो इसे कहेंगे इथॉक्सी ईथेन। एक किसी को कार्बन चेन मेन मान लीजिए, बाकी में का रूट वर्ड और उसके साथ ऑक्सीजन का, इथॉक्सी ईथेन। तो ये दोनों ही कैसे हैं, फंक्शनल, ये दोनों ही मेटामर है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, ये दोनों ही कैसे हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो एल्काइल ग्रुप जो दोनों तरफ हैं,
इधर उनका नेचर चेंज हो या उनका वो एल्काइल ग्रुप ही चेंज होते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि वो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हम और कुछ एग्जांपल्स जैसे देख सकते हैं तो जो है वो फंक्शनल, जैसे अब हम आ जाते हैं कीटोन्स के बारे में बात करते हैं। कीटोन्स में एक एग्जांपल जैसे हो सकता है C5H10O, तो हम क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 तो इसे कहते हैं पेंटेनोन। लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं CH2 और C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो देखिए दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो इसे ये होता है 2 पेंटेनोन इसे और 3 पेंटेनोन, लेकिन दोनों ही मेटामर हैं। अच्छा देख रहे हैं पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मेटामेरिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आंसर मेटामेरिज बिल्कुल सही होगा। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी कि मैंने आपसे इस बारे में क्या शेयर किया हुआ है और क्या शेयर में करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कहा, मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूँ C4H8O2, तो क्या लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2 और COOH, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज हो सकता है, लेकिन ईस्टर की हम बात कर रहे हैं तो ये मैंने गलत लिख दिया, मैं ईस्टर ही बनाना चाहिए मुझे, CH3 CH2 और यहाँ COO CH3। तो इस कंडीशन में देखेंगे जैसे कहेंगे मिथाइल प्रोपेनोएट, क्या नाम होगा इसका, मिथाइल प्रोपेनोएट। मैंने इसी का एग्जांपल आपसे शेयर भी किया था, लेकिन अगर ऐसा इसे लिख दिया जाए CH3CO C2H5 तो ये हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। तो दोनों तरफ यहाँ देखिए इसमें नेचर का काफी रोल हो जाता है, नेचर डिफरेंट हो जाता है एल्काइल ग्रुप का। ये देखिए यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है इथाइल, यहाँ इथाइल ऑक्सीजन जुड़ा है, तो नेचर डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये कंडीशन होती है। तो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है या उसका नेचर डिफरेंट हो सकता है, यानी वो जिससे जुड़ा हुआ है वो ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, वो एटम से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम क्या मानते हैं कि ये मेटामेरिज्म है या ये मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ रही इस बात सभी को? आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन नाउ, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं हम क्लास में डिस्कस करेंगे या अपने टीचर से डिस्कस करें। अगर कोई अदर बच्चे देख रहे हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं हेल्प कर पाऊंगा। बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो देखें और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।